بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. محدثین کا اپنا اپنا منہج ہے. امام بخاری کا اپنا ہے، مسلم کا اپنا ہے، ترمذی کا اپنا ہے. اس لیے جس محدث کی حدیث ہے اس سے فیصلہ کرانا ہے. آپ کے ذمہ تو اب یہ تھا کہ آپ نبی پاک کی بات مانتے. ابھی آپ یا تو ٹائم لیں یا مجھے یہاں پہ قولی حدیث پیش کریں. لہذا میں یہاں پہ اب چیلنج دے کے جا رہا ہوں، جو بندہ رفع یدین کرتا ہے پورے کشمیر میں پھیلا دیں. وہ ایک حدیث لے کے آئے قال رسول اللہ سے کہ نبی پاک نے حکم دیا ہو، فرمایا ہو، میں بھی رفع یدین کروں گا اور آپ بھی کریں گے. بھائی آپ لاہور سے آئے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے. میں جیلم سے آیا ہوں. ٹھیک ہے، سفر تو کر کے آئے ہیں. آپ سائل ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کو مکمل کرنا ہے، اس کو مکمل ہونے دینا ہے، پھر اگلی بات اسٹارٹ کرنی ہے. درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرنا تاکہ میں اپنی بات مکمل کروں. جب میں مکمل کر لوں آپ کو سمجھنے پھر سوال کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ اچھی نیت رکھ کے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور سننے والوں کو سمجھ آئے گی. آپ بسم اللہ کیجیے. آپ اپنا موقف پیش کریں کہ ہم یہ جتنے بھی ہیں کیا کہنا ہے اس کو، امام حنیفہ والے، کہ یہ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پھر میں اپنا ایک دلائل دے سکتا ہوں کہ میں کیوں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ یہ ہے، سنیں نا، اس طرح نہیں ہے. یہ سارے کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے. آپ پہلے نہیں کرتے تھے؟ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ پہلے نہیں نہ کرتے تھے، شروع سے. کب سے کر رہے ہیں؟ 1 سال ہو گیا. تو ظاہر آپ بتائیں گے نا بھی آپ نے شروع کیا ہے تو کیوں شروع کیا ہے. تو آپ سوال کریں کہ میں نے یہ روایت پڑھی، یہ حدیث پڑھی تو میں نے شروع کر دیا. تو ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے کہ اگر حدیث ہوگی تو ہم بھی عمل کریں گے اس پر. آپ نے رفع یدین کیوں شروع کیا، آپ لوگوں کو یہ بتائیں اور مجھے بھی بتائیں. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ اس پر بعد میں بات کر لیں گے. کیونکہ ایک طریقے سے بات کریں گے سلیقے سے تو بات لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور مجھے سمجھانا بھی آسان رہے گا. آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے رفع یدین پہلے نہیں کرتے تھے تو آپ نے شروع کیوں کیا؟ سارے لوگ جانتے ہیں یہ جو یہ کتب ستہ ہیں ساری، یہ سب کچھ پتہ ہے کہ کون سی ہے، پتہ ہے کون سی ہے. سیاست ہے، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، جی جی بالکل ٹھیک ہے. نام بتائیں. میرے بھائی دیکھیں، نہیں آپ نے لوگوں سے سوال نہیں نہ کرنا، مجھ سے سوال کرنا. آپ مجھے بتائیں. میں دراصل خود سے آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. میں سب سے پہلے نا اپنے عوام کے لیے میں عوام تو سن رہی ہے نا، آپ اپنا سوال کریں، وہ سن رہے ہیں، مطمئن رہیں گے انشاءاللہ. سوال اس طرح کے میں نے شروع کیوں کیا. میں آپ کو جی جی کہ میں نے کیوں شروع کیا، اس کا سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے. اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ ہیلو، اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ نبی پاک حضور بنے. صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اور انہی کا جو طریقہ ہوگا وہ ہم نے پڑھنا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں وہ تو آپ کو لام اللہ میں نے پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہے، وہ جو آپ سٹارٹ لیتے ہیں کہ وہ مالک بن حویرث والی ہے، اس میں 31 والی جو حدیث ہے کہ نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا نماز شروع کرتے ہوئے انہوں نے رفع یدین کیا اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا. ٹھیک ہے، اور اس کی کمال یہ ہے کہ کتب ستہ کی 6 کتابوں میں اسی سے حدیث سے ہی نماز کا سٹارٹ ہے. اب ایک سوال میرا یہ ہے کہ رفع یدین کی منسوخی کے بارے میں کہ آپ اس کا کوئی سن ہے کہ کب منسوخ ہوئی ہے. پہلے آپ یہ کریں نا کہ آپ نے جب رفع یدین شروع کیا ہے اپنے دلائل لوگوں کو بتائیں نا. دوسرا سوال کہ پہلا یہ ضروری ہے. نہیں دیکھیں، آپ نے نا، میں آپ کو اتنا ٹائم دے رہا ہوں، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ایک چیز کو پہلے کلیئر کرنا ہے پھر دوسری کی طرف جانا ہے. اس سے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اور سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے. ہمیں اپنی نیت آراستہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رسول کی رضا کے لیے گفتگو کرنی ہے یا لوگوں کو سوال و جواب کرنا ہے. میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جتنی گفتگو کروں گا پوری ایمانداری کے ساتھ، کسی چیز کو نہیں چھپاؤں گا اور اللہ رسول کی خاطر میں گفتگو کروں گا، ایک چیز بھی نہیں چھپاؤں گا. آپ نے یہ حلف دینا ہے حمزہ بھائی. آپ کو جب بات سمجھ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. کجباسی، شور شرابہ، ضد نہیں کرنی. ابھی میں آپ کے سامنے، آپ کا پورا محلہ، آپ کے ابو موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر حمزہ بھائی رفع یدین کر رہے ہیں ضد کی وجہ سے، اگر یہ میں آپ کو الزام نہیں لگا رہا، اگر حمزہ بھائی رفع یدین اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں ضد ہے کہ باقی سارے نہیں کرتے تو میں الگ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، تو میرا ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ضد کی وجہ، اور ضد کا کوئی علاج نہیں. لیکن اگر انہوں نے رفع یدین شروع کیا، 1 سال ہو گیا ہے، اس لیے شروع کیا کہ تاکہ یہ صاحب انہیں یہ بتایا گیا یا یہ انہوں نے پڑھا کہیں پہ کہ بھائی نبی پاک رفع یدین کرتے تھے، حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہے اور دلیلوں کی وجہ سے اور ریفرنسز کی وجہ سے، تو یہ ہم سے بات کریں. آپ نے اپنی دلیل بیان کی ہے بخاری شریف کی 736 کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور مشہور صحابی ہیں. تو ان سے مروی ہے کہ حضور السلام نے آپ نے کہا کہ نماز میں رفع یدین کیا. یہی لفظ ہے، آپ کے ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، سن، اچھا ایک ہی ہو گئی. اب آپ نے اگلی بات میری یہ سننی ہے کہ آپ نے اگلی دلیل، جتنے دلائل ہیں آپ سارے کیا کرنے ہیں؟ آپ نے بیان کرنے ہیں. اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا، پھر عوام بھی سنیں گی، آپ بھی سنیں گے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر سمجھ نہ آئے پھر سوال کر لینا ہے, لیکن درمیان میں نہیں بولنا, شور نہیں کرنا, مجمع میں سے کوئی بندہ نہیں بولے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات کو کلیئر کر کے پھر دوسری کی طرف جانا ہے. ایک حدیث آپ نے بیان کر دی ہے بخاری کی 736, اس کے علاوہ اپنے دلائل بیان کریں. یہ ہوگی کلیئر, ٹھیک ہے. اب میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں اسی چیز. دوسری ہے مالک بن حویرث کی, جنہوں نے یہ حدیث پیش کیا نا, ٹھیک ہے, کہ وہ کچھ یہ وہ مسلمان ہیں جو فتح مکہ کے بعد ہوئے. فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں, ٹھیک ہے. تو یہ 8 ہجری کے بعد ہوئے ہیں, تو مطلب حضور کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے سے تقریباً 2 سال پہلے یہ مسلمان ہوئے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آگے بحث ہے. سمپل سی میں باتیں کلیئر کرتا جاؤں ایک دفعہ, اس کے بعد یہ بولیں گے میں سائڈ ہو جاؤں, ٹھیک ہے. مالک بن حویرث, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے یہی ذکر کیا کہ ہم کچھ ساتھی تھے, کوئی 15-20 ساتھی تھے, یہ حضور کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے. تو حضور کے ساتھ رہے کچھ دن, اس کے بعد جب ان کو گھر کی یاد ستانے لگی, وہ پوری اسٹوری ہے بخاری میں ہی, اور یہ بخاری کے اندر یہ پورا انہیں باب بتا ہوا. اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا نا کہ اس سے پہلے کہ وہ خود بھاگ جائے یا اس طرح کی کوئی مایوسی دکھائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ اپنے گھر چلے جاؤ اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے آخر تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد مالک بن حویرث یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تب بھی رفع یدین کرتے, پہلے والے تو وہ ہے ہی. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے. بخاری, مسلم, ترمذی کے علاوہ کتب ستہ کی 5 کتابوں میں یہ بھی موجود ہے. ایسے ہی 2 ہو گئی مالک بن حویرث کی روایت. تیسری, ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ نے ساری اپنی بیان کر لیں, ٹھیک ہے جی. پہلی حضرت عبداللہ بن عمر والی بخاری والی 736 نمبر, دوسرا مالک بن حویرث والی, اس کا نمبر یاد نہیں, اس سے اگلا ہے 737. جی نیکسٹ. 2 ہو گئی. تیسری ہے اسی کے آگے ہے وائل بن حجر, ٹھیک ہے. یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کافی سارے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ اکثر یہی سوچتے رہتے تھے کہ رفع یدین مکہ میں ہوتا تھا, مدینہ میں نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ خود رکھ کے آتے تھے, اور یہ کافی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس میں, یہ ایڈ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں. اور یہ ایک بندے کا میں گواہ ہوں کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ خود رکھ کے آتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ رفع یدین کرتے تھے تاکہ گر جائے. جس کی آج تک میں نے کبھی کوئی دلیل دیکھی نہیں ہے کہ کسی کا گرا ہو, اس کا حضرت عمر نے حضرت علی نے سر کاٹا ہو, کسی کوئی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے چیزیں, میں جب آخر میں بولوں گا نہیں. تو وائل بن حجر بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, اور اس کا جو امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم گھر چلے گئے, اس کے بعد ہم سردیوں میں واپس آئے, پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 سال کے بعد سردیاں جب پڑی تو میں وہ پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 10 ہجری, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ قریب قریب میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ آئے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو چادر کے اندر, سردیاں تو چادر کے اندر سے رفع یدین کرتے, اور پھر جب رکوع سے اٹھتے تبھی چادر کے اندر ہی رفع یدین کرتے. یہ 3 ہو گئی جی. 20 منٹ ہو گئے آپ نے سوال شروع کیا ہوا ہے. نہیں, وہ پورا میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ جاری, میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی کاؤنٹ کر رہا ہوں نا. میں اپنا یہ کروں یا میرے بھائی آپ اگلی دلیل بیان کریں نا. 3 ہو گئی ہیں, اگر چوتھی کریں. یہ ہے وائل, یا انہیں پر وائل سردی بھی ہے, اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ 3 ہو گئی ہیں. جو سنیں باقی چھوڑ دیں تفصیل. یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مسلمان کی جتنا کافی ہوتا ہے کہ نبی پاک کی حدیث صحابی کیا بتا رہے ہیں. آپ نے بھی تبھی شروع کیا تھا کہ آپ 3 روایت, اس کے علاوہ کوئی روایت ہے تو بتائیں. وائل سردی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوگی. چلیں بات یہ کہتے ہیں کہ فرمایا شریف سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ حضرت علی سے ہے, حضرت علی. یہ امام بخاری نے ایک اور کتاب لکھی ہوئی ہے, جز رفع یدین. جز رفع یدین, جز کتاب کے اس کتاب بتا رہا ہوں کہ وہ میں کروا دوں گا نا آپ. ہاں جز رفع یدین, جی ٹھیک. جز رفع یدین میں امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث ہے اس میں پورا میں باب بندہ ہوا ہے جس میں 100 سے زیادہ صحابہ جتنے بھی ہیں ان سے رفع یدین کا ذکر کیا ہے, اور اس میں انہوں نے پہلی حدیث ہی حضرت علی سے لی ہے, اور یہ حدیث حضرت علی کی یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. اور ٹھیک ہے, 4 ہو گئے جی. ہو گیا نا, اتنا کا مولا علی کا نام ہی کافی. آگے جی بس کافی ہے. حضرت انس بن مالک سے بھی انہی میں کتب ستہ میں بات کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے, انس بن مالک 5 ہو گئی. اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر 6. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی. آخر میں آپ سب کے لیے ہے یہ 6 ہو 6 حدیثاں بڑی ہونی ہیں بنے ہوا تھا, منن والے سے دیکھ بھی بڑی ہوندی. جی ٹھیک ہو گیا. اس سے امپورٹنٹ یہ جو کتب ستہ 6 کی 6 لکھنے والے, یہ 6 کی 6 لکھنے والے رفع یدین کرنے کے قائل ہیں. یہ جو چلے یہ تو بابے ہو گئے نا, آپ تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, بس چھوڑ دیں ان کو. چھوڑ اچھا, جو 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, ان 4 میں سے 3 رفع یدین کرتے ہیں, ایک نہیں کرتے. یار میرے بھائی دیکھیں, آپ بابوں کی طرف نہ جائیں نا, وہ چھوڑ دیں ان کو. آپ کی جو آپ نے جو شروع کیا ہے وہ کس وجہ سے شروع کیا ہے؟ بابوں کی وجہ سے شروع کیا ہے, نبی پاک کی وجہ سے. یار ان کو چھوڑے نا آپ, میں جو آیا ہوں وہ تو آپ پہلے بھی, اگر آپ سے یہ مسئلہ حل ہوتا آپس میں تو مجھے آنے کی ضرورت تھی, لوٹ تھی. وہ سارے مفتی ہیں, یہی تو کہہ رہا ہوں میرے بھائی. آپ ابھی 25 منٹ ہو گئے ہیں, اب بیٹھ جائیں نا, ہو گیا. ماننے والے کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے جی, اب میں آپ گزارش کروں گا, میری آپ نے بات سننی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے قرآن پاک ہے ادھر کہیں قریب, قرآن پاک لے آئیے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو زبانی حلف دیا, ویسے ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہوتا شرعی طور پر. ٹھیک ہے, نہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, آپ نہ رکھوائیں نا, میں خود رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے اب آپ نے درمیان میں نہیں بولنا. ٹھیک ہے, ہمارے جو بھائی ہیں حمزہ صاحب, ٹھیک ہے, ان کے والد صاحب موجود ہیں, کہاں پہ ہیں؟ ہاں جی, آپ نے ان کی بات سنی ہے اور ان کو ہم نے پورا سنا ہے.
हालांकि सवाल बहुत मुख्तसर होता है, 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है, लेकिन 25 मिनट हमने इनकी गुफ्तगू सुनी है, क्योंकि महफिल पहले भी मैंने तकरीर की है, लोग बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इतना मजमा लगा हुआ है, रात इतनी गुजर गई है, तो हम कहते हैं जितनी जल्दी बात खत्म होगी उतना क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो मैंने इनकी पूरी बात सुनी है, आप सब गवाह हैं, और इतनी देर सुनी है, इतनी देर कोई बंदा भी बात नहीं सुनता जितनी मैंने इनकी सुनी है, इसलिए कि ये अपनी पूरी तसल्ली कर लें, ठीक है। अब आप बैठ जाएँ यहाँ पे, इनको कुर्सी दे दें या नीचे बैठ जाएँ, यहाँ से जिधर भी बैठ जाएँ, पूरी यहाँ भी बैठे हैं। अब तवज्जो से सुने मेरी बात, आप सब हाजिर हैं, मौजूद हैं, आप सब हक़ के तालिब हैं और हम सब हक़ के तालिब हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह तबारक व तआला को अलीम व खबीर जानते हुए और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़िर जानते हुए मैं ये हलफ देता हूँ, ये कुरान पाक आ गया है और ये मेरे हाथ में है, ठीक है। मैं इस कुरान पाक को हाथ में रख के ये हलफ देता हूँ कि मेरा यहाँ पे आना, मुझे नहीं पता था कि हमजा नाम का कोई भाई है, मुझे तो यहाँ के पता भाई ये है, मुझे इनका नाम भी नहीं पता, पहली मुलाकात है हमारी और आपकी, पहली मुलाकात है, इन पर कैमरा लगाएं। क्यों कि होता ही है कि जब हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो बाद में लोग वो कहते हैं कि ये इनके अपने प्लांटेड बंदे होते हैं, अपने बंदे को पैसे दे के बिठा लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। एक दफ़ा माइक इनको दें, सिर्फ इतना कह दें, हमजा पहली मुलाकात है जी। एक बात मैं करता हूँ, पहली बात ये आप क्लियर करें कि आपकी मेरी और पहली मुलाकात है, इससे पहले मेरी आपकी मुलाकात नहीं हुई, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, आपको ब्लैकमेल नहीं किया, नहीं ना किया, और ये वीडियो भी जो बन रही है आपकी मर्जी से बन रही है मजमे में, हम आपकी ज़बरदस्ती वीडियो भी नहीं बना रहे, ठीक हो गया। अब बैठ जाएं। मैं यहाँ पे अल्लाह का कलाम है, कुरान कलामुल्लाह जो हम पढ़ते हैं और जो हिदायत का मेयार है और खुदा की किताब है, इसको हाथ में लेकर ये हलफ देता हूँ कि मैं यहाँ खुदा के लिए आया हूँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर आया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हक़ बयान करूँ और किसी किस्म की चीज़ मैं कोई भी छुपाऊँगा नहीं। अगर मैं कोई चीज़ छुपाऊँ जानबूझ के, जैसे जो भाई ने कही है मैं उसको छुपाऊँ और मैं पूरी बात ना करूँ, तो मैं ये हलफ देता हूँ कि खुदा मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना करे। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये हलफ देना है कि आप हलफ दें कि आपको बात समझ आ गई, तो आपने बात को एक्सेप्ट करना है, जिद नहीं करनी कि भाई हम नबी पाक के उम्मती हैं, हमारे लिए हुजूर का फरमान हुज्जत है। आपको बात समझ आ गई तो आप बात को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो सवाल करना होगा, जो मैं बात करूंगा, आपने मुख्तसर करना होगा, इनको नहीं समझाना, अपना एतराज़ करना है, मेरा मुझे ये बात समझ नहीं था कि मैं उसको आगे बढ़ा सकूँ, क्योंकि अगर इस तरह आप सवाल करते रहे 25-25 मिनट के तो फिर रात भी बीत जाएगी और बात खत्म नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि ये सफ़र आप मैंने भी किया है, रात हम बैठे हुए हैं, बात खत्म हो जाए, ठीक है। अब हमजा भाई ने आपके सामने कितनी रिवायतें पेश की, 6 रिवायतें पेश की, और 6 की 6 जो है, एक इन्होंने अरवल से जुज़रुल यदैन से पेश की और बाकी क्या की, बुखारी से पेश की या मुस्लिम से पेश की या उसका सियासता से हवाला दिया। सियासता 6 किताबें हैं, ऐसे ही। और इन्होंने आपको तारुफ भी कराया कि ये सियासता हैं और ये इन्होंने सियासता की सारी हदीसें पढ़ी हैं, टोटल पढ़ी हैं, हाँ जी, सिर्फ इमाम बुखारी पढ़ो, तो इमाम बुखारी की सारी पढ़ ली हैं। तो फैसला कैसे कर लिया कि अभी तक सारी नहीं पढ़ी थी और आपने फैसला कर लिया कि भाई ये करना चाहिए? नहीं, ये डिस्कशन नहीं, अभी जो टॉपिक है क्योंकि टाइम, अच्छा सारी नहीं पढ़ी ना, अच्छा सुने ना, नहीं मुख्तसर था भाई, मैं चाहता हूँ कि आपका क्राइटेरिया मुझे पता चल जाए ना, तो आपने सारी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, और बुखारी पढ़ी, बुखारी भी कुछ पढ़ी हुई, ऐसा ही। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने ये सारी की सारी पढ़ी और एक बार नहीं पढ़ी, कई बार पढ़ी, ठीक है, और एक एक हदीस को पढ़ाया भी है, मैं पढ़ाता भी हूँ बुखारी मुस्लिम दोनों सबक इस वक्त भी दारुल उलूम जेल में मेरे पास, और मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरे चाचा भी पढ़ाते थे और वो हाफिज़ भी थे बुखारी के, पूरी ज़मानी याद थी, दादा पढ़ाते थे, उन्हें भी शेखुल हदीस से कई नस्लों से। और सबसे पहले जो बुखारी यहाँ पे लेके आए हैं ना, आप तारुफ करवा रहे हैं या कोई और करा रहा है, बड़े सगीर पाक हिंद में जो बुखारी लेके आया हमारा बाबा लेके आया, ये भी हम लेके आए, मुस्लिम हम लेके आए। अब हमजा भाई का ये सवाल है, ये उनका है कि भाई इन्होंने 1 साल हो चला है, इन्होंने रफ़ा यदैन शुरू किया, और इनकी उम्र शरीफ कितनी है आपकी प्यारे भाई? 27, यानी 27 साल इनकी उम्र है, और उसके नमाज़ पढ़नी शुरू की होगी आपने 15 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, ऐसा ही है, 7 साल की उम्र में नमाज़ पढ़ना हमजा भाई ने शुरू की है। हमारे भाई हैं, सबसे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके साथ आपने नफरत का जज्बा नहीं रखना, बल्कि मोहब्बत का रखना है। ये सारे हमारे भाई हैं, जब ये देखते हैं कि हदीस शरीफ है तो ये क्या करते हैं, अपने तौर पर ये अमल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये कुछ जानबूझ, अगर ये बाद में पता चल जाएगा कि ये ज़िद की वजह से करते हैं या आपको तो ज़िद की वजह से नहीं करते, उन्होंने बता दिया कि हदीस की वजह से करते हैं। 7 साल की उम्र में हमजा भाई ने नमाज़ पढ़ना शुरू की और 26 साल की उम्र तक कितने साल बनते हैं? 19 साल तक, ऐसा ही है जी। ये बगैर रफ़ा यदैन की नमाज़ पढ़ते रहे, और इनके वालिद साहब भी नमाज़ पढ़ते हैं, और आप अभी नहीं रफ़ा यदैन करते, नहीं करते। इनके वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे, और ये सारा जहान जो है वो नहीं कर रहा। और इस इलाके में, इस मस्जिद में भी चंद साथी हैं जो कर रहे हैं, इससे पहले ये नहीं करते थे, ठीक है। क्यों नहीं करते थे कि सारे हम नहीं करते, और ये कहें कि भाई ये तो आम लोग हैं, भाई आप ये सैंसा वाले जो सैंसा में यहाँ पे जो रहते हैं, सैना में, सैनी में, तो ये तो आम लोग हैं, हदीस नहीं पता। ये मौलवी हज़रात जितने हैं सारे जो बुखारी पढ़ते पढ़ाते हैं और हदीसें पढ़ते हैं, और ये पूरा दौरा करते हैं, 8-9 साल मस्जिद में लगाते हैं, ये भी नहीं करते। हमारे हज़रत साहब भी नहीं करते, इतनी दुनिया नहीं करती। और अब भी इंजीनियर साहब से भी अगर आप पूछें तो वो भी कहते हैं कि 70% लोग दुनिया में रफ़ा यदैन नहीं करते, ठीक है। मुसलमानों के 70% तादाद, यानी सबसे ज़्यादा तादाद नहीं करती। तो इन्हें बताया गया, इन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत पढ़ी, हज़रत वाइल बिन हजर, इन्होंने कहा हिजर कहा, वो हज़रत वाइल बिन हुजर है रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला उनकी रिवायत पढ़ी कि उन्होंने भी जाके अपने इलाके में ये बताया कि हुज़ूर रफ़ा यदैन नमाज में करते थे। और ये इन्होंने 6 या 7 रिवायतें बताई, 7 बताई, मैं कहता हूँ 700 बताएं। कितनी बताएं? 7 नहीं, 700 रिवायतें ले आएँ, सारी की सारी रिवायतें ले आएँ। उनमें यही होगा कि सहाबी ये बताएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन किया, कौल सहाबी का होगा और फेल किसका होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। कौल किसका होगा, फरमान किसका होगा? सहाबी का, और फेल किसका होगा?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबी हुजूर के फेल के बारे में बताएगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ यदैन करते थे, और वो भी मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ जगहों में मिलेगा। जैसे मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के बारे में अगर बात करें तो उनकी रिवायत मौजूद है कि उन्होंने सजदों के दरमियान भी रफ़ यदैन बताया। ठीक है, अबू दाऊद में, सुनन नसाई में ये रिवायत मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस ने जो अपनी कौम को जाकर नमाज पढ़ाई है उसमें सजदों के दरमियान भी रफ़ यदैन उन्होंने बताया, जबकि ये हमज़ा भाई सजदों के दरमियान भी रफ़ यदैन करते हैं जी। अच्छा, कभी कभी कर लेते हैं, तो उन्होंने तो ये बताया कि हुजूर करते थे। ठीक है जी, तो सजदों के दरमियान भी वो रफ़ यदैन का जिक्र है। इसी तरह मुख्तलिफ आप रिवायतें देखेंगे तो इब्न माजा में दीगर मुकामात पे ऐसी आपको रिवायतें मिलेंगी जिसमें हर तकबीर पर भी रफ़ यदैन कहने का जिक्र है कि सहाबी ये भी बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ यदैन करते थे, फलां फलां मकाम पे करते थे, रुकू से उठते, रुकू से जाते, दोनों सजदों के दरमियान हर तकबीर पर, और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रफ़ यदैन सहाबा आपको बताएंगे। तो ये मुहद्दिसीन चूँकि नेक साले लोग थे, इन्होंने सारी की सारी हदीसें क्या की, जमा की। जबकि आपको सियासत ही के अंदर ऐसी रिवायतें भी मिलेंगी, सहाबा कराम ये बताएंगे कि हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ यदैन नहीं करते थे, जैसा कि जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 257। ठीक है, अब मेरी सुन लेना, अभी आप उस तरफ चले जाएंगे, बाद में उस पर करेंगे, मेरी तवज्जो से मेरी बात सुने और पूरी ईमानदारी से अल्लाह को अलीम खबीर जानते हुए उसको सामने रख के करें कि ये मौलवी इतना मुझसे खपने के लिए यहाँ पे आ गया तो ये यूँ ही नहीं आ गया। ठीक है, ये चाहता है कि मैं भी हक पे रहूँ और आप भी हक पे रहें। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 257 2 से 57, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो 8वें नंबर पे मुसलमान हुए, कितने नंबर पे, अस्साबिकून अल-अव्वलून, जो पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं उनमें शामिल हैं। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज सीखी, हुजूर के साथ रहते थे। बुखारी के अंदर है, हुजूर उनकी तारीफ की, दीन का मसला ये बताएंगे, हुजूर के नालैन शरीफ उठा के रखते थे, हुजूर इस्लाम का मुसल्ला, लोटा, सारा हुजूर का जो सामान था, ज़रूरत का खादिम थे, सारी ज़िंदगी हुजूर के साथ गुजारी, सफ़र में, हज़र में, जंग में, हर मौके पर। और वो भाई साबित थे, हुजूर उनके बारे में फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरे घर का बंदा है, उसको घर की इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने करीब थे। उन्होंने जामे तिरमिज़ी में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सहाबा को ये कहा, लोगों को ये कहा, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें वो नमाज़ पढ़ के दिखाता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते, नबी पाक वाली नमाज तुम्हें मैं पढ़ के दिखाता हूँ। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, सहाबी ने नमाज पढ़ के दिखाई तो सिवाय पहली मरतबा के दोबारा रफ़ यदैन नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी की आदत यह है, मुहद्दिसीन का अपना अपना मनहज होता है। ठीक है, मुहद्दिसीन का अपना अपना, आप देखें ना, उनको दिखाएंगे तो मेरी बात कैसे सुन पाएंगे, उनको मैं पूरा मौका दूंगा कि वो अपनी तहकीक कर लें। आप मेरी बात सुनने नहीं, हो सकता सुनेंगे तो समझ आएगी ना, अगर मैं गुफ्तगू करूँगा तो आप उनको मोबाइल दिखाएंगे तो वो तो फिर मेरी बात सुनेंगे नहीं और मेरी मेहनत सारी क्या हो जाएगी। मैं यहाँ पे हूँ, कल भी यहाँ पे रुक जाऊँगा, कोई मसला नहीं, फिर जब कहेंगे फिर भी आ जाऊँगा। मैं ये तो नहीं ना कि जिसकी वजह से आपने शुरू किया है वो तो दरवाजे से बाहर निकलता, मैं तो घर का आने वाला बंदा हूँ। ठीक है, आप घबराएं नहीं, मेरी बात पूरी सुन लें। इमाम तिरमिज़ी की आदत मुबारक ये है कि वो हदीस पाक जिक्र करने के बाद हर हदीस पर हुक्म लगाते हैं। ये 6 मुहद्दिसीन हैं, इसके अलावा जितने मुहद्दिसीन हैं हर मुहद्दिस का अपना अपना मनहज है हदीस पर हुक्म लगाने का। इमाम बुखारी का अलग है, मुस्लिम का अलग है, तिरमिज़ी का अलग है, नसाई का अलग है, अबू दाऊद का अलग है वगैरह। इमाम तिरमिज़ी की आदत यह है कि हर हदीस के आखिर में उसका हुक्म भी बयान कर देते हैं, इसनादी हैसियत। तो उन्होंने फरमाया हदीस इब्न मसूद हदीसन हसन, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस हसन है। साहबी रसूल ने बताया कि हुजूर रफ़ यदैन मैं तुम्हें वो नमाज पढ़ के दिखाता हूँ, पढ़ के दिखाई, उसमें पहली मरतबा किया, दोबारा नहीं किया। अबू दाऊद शरीफ सियासत की किताब है, कुतुब सित्ता में शामिल है, उसमें हदीस नंबर 749, क्या नंबर है, रावी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने बताया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह अस्सलाता यरफ़उ यदैहि इला क़रीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदुहु। सहाबी रसूल हज़रत बरा बिन आज़िब कहते हैं नबी पाक जब भी नमाज शुरू करते, शुरू में कानों तक हाथ उठाते, दोबारा नहीं उठाते। सिर्फ नमूने के तौर पर 2 हदीसें बताई, दोनों कैसे बताई हैं, सियासत से, एक अबू दाऊद शरीफ से, एक जामे तिरमिज़ी से, और ये रिवायत नसाई में भी और दीगर अल्फाज के साथ मौजूद है। आप भी जो बता रहे हैं वो भी एक ही रिवायत मुख्तलिफ सहाबा को रिवायत करते हैं। अब दोनों तरफ अमल आ गया, सहाबी ही ये बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ यदैन करते थे और सहाबी ही ये बता रहे हैं कि रसूल रफ़ यदैन है। और सहाबा ईमानदार आदमी थे, हमारी तरह नहीं थे कि हम अपना मसला की फ़िरका परस्ती करने के लिए कोई झूठ बोल दे। मैंने तो हलफ इसलिए दे दिया कि लोग यकीन नहीं करते हैं जी, लोग कहते हैं मौलवी बख्शे गए तसी भी बख्शे जाओगे, इसलिए मैंने आपको हलफ दिया कि मैं खुदा की खातिर कर रहा हूँ, मुझे मरना है, कब्र में जाना है। ठीक है, ये बच्चे हमारे 2 रिवायतें, एक रिवायत भी काफ़ी होती है। और मैंने आपको बताया मालिक बिन हुवैरिस 20 दिन रहे, आपने खुद कहा बुखारी में कितने दिन रहे नबी पाक के पास, 20 दिन, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद सारी ज़िंदगी रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, हुजूर ने पढ़ी। अब दोनों तरफ अमल मौजूद है, कौल सहाबी का, अमल रसूलुल्लाह का। जबकि जब हम हदीस शरीफ की तरफ गौर करते हैं तो हदीस की 3 किस्में, नबी पाक की हदीस की किस्में जो मुहद्दिसीन ने बयान की हैं वो कितनी की हैं, 3, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। जो नबी पाक फरमाएं, खुद इरशाद फरमाएं, वो होता है नबी पाक का फरमा कौल। एक काम हुजूर करें वो होता है नबी पाक का फेल। एक काम हुजूर के सामने किया जाए और हुजूर उसको मना न करें, वो क्या होती है, हदीस तकरीरी। अब पूरी हदीस की किताबों में, कुतुब सित्ता हो या कोई किताब भी हो, मैंने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी लगा दी है, 20 साल तक से पढ़ता रहा हूँ मैं, देखी हैं हदीस की किताबें, मुझे कहीं भी ऐसी हदीस नहीं मिली जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ यदैन करने का हुक्म दिया हो, फरमाया हो। दोनों तरफ अमल मौजूद है, करने का भी और न करने का भी। अब अगर हदीस की वजह से फैसला करेंगे तो कैसे फैसला करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक साहबी कह रहे हैं हुजूर करते थे, एक साहबी कह रहे हैं हुजूर नहीं करते थे। मुहद्दिसीन ये बताते हैं, उसूल मुहद्दिसीन ये है कि एक दोनों तरफ अमल हो हुजूर का, एक हदीस फेली हो, दूसरी भी क्या हो, फेली हो, और दूसरों में मुख्तलिफ बातें हों। एक में हो कि करना है, एक में हो नहीं करना, यानी एक में है कि हुजूर ने किया और एक में हुजूर ने नहीं किया, तो तरजीह कैसे हासिल होगी, भाई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रफ़ुल यदैन के बारे में कुतुब सित्ता के अंदर ही, हदीस की किताबों के अंदर ही दोनों तरह की चीज़ें मौजूद हैं, करने का भी जिक्र है हुजूर का और हुजूर के
اور یہ دونوں طرف کیا ہے؟ حضور کا عمل ہے. اب دیکھنا یہ کہ حضور کا قول کس طرف ہے. تو ہم حدیث کی کتابیں چھانتے ہیں, ہمیں کہیں بھی قال رسول اللہ سے, قالا کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں ملتی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو, صحابہ کو نماز سکھائی ہو. اب دیکھیں بخاری کے اندر ہے روایت کہ نہیں ہے, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سکھائی ہے. ابھی آپ پھر مصروف ہو گئے تو میری بات کیسے سیکھیں سنیں گے؟ یہ بلکہ سارے میں آپ کے سنوں گا, یہ سارے سنوں گا نا میرے بھائی, ٹھیک ہے. بخاری شریف کے اندر ہے, مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور نے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے آ کے نماز پڑھی, حضور تشریف فرما تھے, اس نے نماز پڑھی, حضور کے پاس آیا, سلام کیا, حضور نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی, پھر پڑھ. پھر انہوں نے نماز پڑھی, پھر واپس آئے, سلام کیا, حضور نے فرمایا نہیں تو نے نہیں پڑھی. یہ بار بار ہوا, 3 بار ہوا. آخر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز سکھائی, اور اس میں رکوع کا بھی ذکر, رکوع سے اٹھنے کا بھی ذکر, سجدوں کا بھی ذکر, لیکن رفع یدین کا ذکر نہیں. حکم نہیں دیا کہ تو اس کے بعد رکوع کے بعد کیا کر. تو حدیث کی پوری کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے قال رسول اللہ سے, قال رسول اللہ ارفعوا ایدیکم, حضور نے ارشاد فرمایا کہ رفع یدین کرو. آپ کو سارا عمل ملے گا, قرات کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, ساری قولی حدیثیں ملیں گی. حضور کا سارا قول آپ کو ملے گا کہ یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, لیکن رفع یدین کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں حضور نے فرمایا رفع یدین کرو. اگر حمزہ بھائی یہاں 1 مہینہ لینا چاہیں, 1 ہفتہ لینا چاہیں, 2 مہینے لینا چاہیں, 1 سال لینا چاہیں, لے لیں, اور ہمیں یہاں پہ ایک حدیث ایسی لے کر آئیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو. صحابی کی بات نہیں, صحابہ تو دونوں طرف ہیں, صحابی کی بات نہیں, حضور نے فرمایا کہ رفع یدین کرو, تو میں آپ کے ساتھ رفع یدین کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گا. جبکہ دوسری طرف جب ہم حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا حضور نے کہیں پہ رفع یدین کرنے سے منع بھی کیا ہے, تو اس کے سلسلے میں ہمیں حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی, اور حدیث نمبر 1185, 1185, کیا نمبر ہے؟ 1185 نمبر حدیث ہے. اب حمزہ بھائی آپ نے پورے غور سے حدیث پاک سننی ہے, اس کو سننا ہے. صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے, نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ, ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. صحابی حضرت جابر بن سمرہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے الگ الگ, حضور آئے, آپ نے دیکھا ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نماز میں کیا کر رہے تھے. اب حضور نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا قالا, یہ قالا ہے, حضور نے فرمایا یہ ہے قالا, یہ ہے حدیث قولی. کیا ہے حدیث؟ حضور نے فرمایا ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانھا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ, یہ نماز میں رفع یدین والوں کو کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے, ان کے ہاتھ ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. صحابی بتا رہے ہیں ہم نماز میں کیا کر رہے تھے, رفع یدین کر رہے تھے. حضور نے دیکھا, حضور نے کیا کر دیا, منع کر دیا. اب یہ قولی حدیث ہمارے سامنے آ گئی, آپ 100 لے کر آئے ہیں, جہاں بھی پڑھیں وہ آپ کو فعل ملے گا, اور فعل میں بھی اختلاف ملے گا, مختلف وقتوں میں مختلف ہو. محدثین کے بارے میں آپ نے کہا کہ محدثین بھی کرتے تھے, محدثین دونوں طرح کے باب قائم کرتے ہیں. ابو داؤد, ترمذی, ان کی عادت ہے کہ پہلے باب بناتے ہیں ان حدیثوں کا جس میں صحابی نے بتایا کہ حضور نے رفع یدین کیا, پھر اس کے بعد باب قائم کرتے ہیں ترک و ذالک. امام نسائی نے کیا باب قائم کیا بھائی, رفع یدین کو ترک کر دیا. تو لہذا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کام پہلے ہوتا ہے یا پہلے منع ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے یا پہلے, تو پہلے ہوتا تھا. بتوں والی ہم نے, میری ساری ویڈیوز موجود ہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں کی. ان لوگوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یہ سارے ان میں سے کوئی مفتی نہیں ہے, عالم نہیں ہے, کوئی ذمہ دار بندہ یہ نہیں کہتا, یہ تو عام لوگ ہیں, انہوں نے اپنے حساب سے بات کرنی, سنی سنائی کرنی, اور بھی کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا ہم رد بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں ان کو. عوام ہے نا, عالم دین کوئی نہیں کہتا ثقہ مضبوط کہ جس نے یہ ذمہ دار, جس نے کہا کہ بت رکھے آتے تھے, بت والی بات نہیں. حضور نے دیکھا صحابہ رفع یدین کرتے مسجد نبوی میں, حضور نے ان کو کیا کیا, منع کر دیا. اس پہ سارے اعتراضات کے جواب فقیر دے چکا ہے, چینل موجود ہے. ایک اعتراض مرزا صاحب نے یہ کیا کہ بھائی پوچھ, گھوڑا تو ایسے ایسے ہلاتا ہے, پوچھ ایسے ایسے نہیں ہلاتا, اور دم ہلتی بھی یوں ہے, ایسے ایسے نہیں ہلتی, گھوڑا یوں دم لاتا, ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا. میں نے اس کا جواب دیا کہ حدیث کو سمجھیں. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عام حالت میں, بلکہ اس میں سرکش کے الفاظ ہیں, شرارتی گھوڑا, اور گھوڑے کی 2 حالتیں ہیں. عام حالت میں وہ ایسے ایسے ہلاتا ہے, جب وہ مستی میں ہو تو پھر اوپر سے نیچے کرتا ہے, کیونکہ ہم نمبردار ہوتے ہیں, ہم نے گھوڑا رکھا ہوا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو پیشکش کی ہوئی ہے, گھمنڈ نہیں ہے ہمارے. ہم نے کہا بھی آپ کو گھوڑا دکھائیں گے بھی, اس گھوڑے پر بٹھائیں گے بھی جو اوپر سے نیچے جاتا ہے, رفع یدین کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھائی نبی پاک نے اپنی سنت کو گھوڑے کی پوچھ سے تشبیہ دے دی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے, سنت وہ ہوتی ہے جو جس کو حضور ہمیشہ کریں, جس کو منع کر دیں وہ سنت ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ حضور تشبیہ نہیں دے رہے, حضور مثال دے رہے ہیں. تشبیہ اور تمثیل میں فرق ہوتا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس طرح سجدہ نہ کرے جس طرح کہ کتا بیٹھتا ہے, اس طرح سجدے میں نہ جاؤ جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. تو حضور سجدے میں بیٹھنے کو کتے کے ساتھ ملا رہے ہیں یا اونٹ کے ساتھ ملا رہے ہیں, یا یہ سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ دیہاتی لوگ تھے, اونٹ جانوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, تو انہیں فرمایا اس طرح نہ بیٹھنا بھی, وہ کیونکہ کونیاں لگاتا ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے. اسی طرح صحابہ کو گھوڑے تو ان کے پاس ہر بندے کے پاس ہوتے تھے, اس لیے ان کو بڑی آسان سی مثال سے سمجھایا کہ جس طرح گھوڑا اوپر سے نیچے مستی کی حالت میں رفع یدین کرتا ہے, تو اس کے بعد جو رفع یدین کرے گا وہ مستی سے کرے گا, دلیل سے نہیں کرے گا. تو حضور نے منع فرما دیا. پھر اس پر اعتراض یہ تھا کہ بھائی یہ سلام سے متعلق ہے. کس سے متعلق ہے؟ اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا. بندے کہتے تھے آپ 1186 پڑھیں, ہم نے 1186 بھی پڑھ کے دکھائی, اس کی سند بھی الگ ہے, اس کے راوی بھی الگ ہیں, اس کا واقعہ بھی الگ ہے. 1185 کے الفاظ ہیں, حضور ہمارے پاس تشریف لائے, خرج علینا رسول اللہ نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ, حضور ہمارے پاس تشریف لائے, ہم نماز میں کیا کر رہے تھے. 1186 کے الفاظ ہیں, ہم نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ایک واقعے میں الگ نماز پڑھ رہے تھے, دوسرے واقعے میں
हाँ देखें 1185 का रावी तमीम बिन तरफा है जो हजरत जाबिर का शागिर्द है, 1186 का रावी उबैदुल्लाह बिन किब्तिया है जो हजरत जाबिर का शागिर्द है। रावी भी मरकजी अलग अलग है, सनद भी अलग अलग है, अल्फाज में भी वाज़ेह फ़र्क है, वाक़या भी अलग है। सलात वाली में सलाम का लफ्ज़ नहीं, सलाम वाली में सलात का लफ्ज़ नहीं। और वो आपको धोखा देने के लिए एप्लीकेशन वाले ने 1185 में ब्रैकेट डाल के इख्तिताम और सलाम के लफ्ज़ डाले। अरबी मतन हदीस किस में ज़बान में होती है? अरबी मतन में हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने कहीं भी सलाम का लफ्ज़ नहीं, सलाम और इख्तिताम दो उर्दू में भी बोले जाते हैं, पंजाबी में बोले जाते हैं, आप हदीस में दिखा दें। तो मेरे भाई अब मतलब ये है कि ये सारी दुनिया जो इतनी रफ़ यदैन नहीं ना करती, इनकी दलील नसाई शरीफ के अंदर है कि हुजूर ने मना कर दिया और हुजूर का कौल और हुजूर का फरमान है। अगर आपके पास हुजूर का कोई फरमान है, ठीक है, अगर हज़रत मालिक बिन वैरस को फरमाया कि तुम मेरी तरह पढ़ो, तो क्या बाकी साहबा को नहीं फरमाया? ये सिर्फ हज़रत मालिक बिन वैरस के लिए था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के लिए नहीं था, हज़रत बरा बिन आज़िब के लिए नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए आपको रिवायतों में बाकी साहबा का मिलेगा, दीगर किताबों के अंदर, मुस्नद हुमैदी के अंदर और दीगर तहावी शरीफ के अंदर मौला अली ने भी रफ़ यदैन तर्क किया, अब्दुल्लाह बिन उमर ने भी तर्क किया, ठीक है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ और हमारा मुकदमा ये है कि जिस चीज़ को हुजूर मना कर दें उसको हमने क्या करना है? छोड़ देना है। लिहाजा आपके पास अगर कौली हदीस है तो आप पेश करें, मैं यहीं पर रफ़ यदैन करूँगा, तकरीर नहीं करना। एक सेकंड, ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ जामिया तिरमिज़ी से, ठीक है। ठीक है। तो उससे पहले ना एक बात बताया, इसी हदीस से पहले इमाम तिरमिज़ी है, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ता हूँ, सुनना है सारा, ठीक है। कि कहा अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी का नाम है, ठीक है। तो ये आपको हदीस बयान करने से पहले ना ये सारे पास हैं, मामून आके देखना। कहा अबू ईसा, ये अपनी बात नहीं कर रहे, जामिया तिरमिज़ी में ये किताब में लिखा हुआ है, जी ठीक है। रवायत में कि हमसे फजल बिन सवाब बगदादी ने, इसमें सफियान बिन आइना ने और उनसे जारी ने और इसी सनाद की। देखिए आप नाम मुहद्दिसीन की गलत पढ़ रहे हैं। मैं देखे ना, मैंने आपको कुरान पाक उठा के बताया कि मैं कोई बात छुपाऊंगा नहीं। उठाया ना, एक मिनट देख सुनना, वही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात पहले सुन लें। आप सिर्फ सवाल करें कि भाई हाँ सवाल करें, ये पर मैंने आपको कहा मैंने कोई बात छुपानी नहीं। आप मुझे बताएं कि पिछले बात पढ़ रहे हैं आप। हाँ मुद्दे पे आए ना। हाँ ठीक। आखिर में जो मैं डायरेक्ट आता हूँ, उसमें लिखा हुआ है ये इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इमाम शाफी और इमाम अहमद का कौल, ये इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है, उन्होंने ये कहा है, इसी के ऊपर ही लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े ना हदीस के ऊपर ही, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि एक अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली हदीस जो रफ़ा यदैन वाली है वो साबित है, खुद जो ये हदीस बयान कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हाँ कौल नकल करें, ठीक है बिल्कुल ठीक। वो ये कह रहे हैं कि इन अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस रफ़ा यदैन वाली साबित है और जो दूसरी है इब्न मसूद वाली वो साबित नहीं है। और इसमें भी उन्होंने उसको हसन दर्जे की कहा है, और ये हसन दर्जा वही होता है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि बारी ये बंदा पास होता है 33 नंबर वाला, ठीक है। तो हदीस एक दूसरी है कि अलकमा वाली में काफ़ी सारे मुहद्दिस ने इसको, जिसमें शेख अलबानी, शेख जुबैर काफ़ी ने इसको, ये है ही ज़ईफ़ हदीस है, ये है ही ज़ईफ़ हदीस है, इसको आज तक किसी भी बंदे ने सही नहीं कहा। दो के पॉइंट मेरे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, और दूसरी मजे की बात ये है कि रफ़ा यदैन ना करने वाली हदीस में 2 से 3 रावी हैं, कुतुब सित्ता में ज़्यादा नहीं है, इतना मुझे पता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो है वो भी ज़ईफ़ है। एक हदीस है जो सबसे ज़्यादा इनके लिहाज से ऑथेंटिक है, वो है अब्दुल्लाह बिन मसूद की, इब्न मसूद वाली, वही जो भी हसन दर्जे की है। मैंने आपको बुखारी और मुस्लिम से 6 हदीसें आपको, बट नहीं वो हो गया ना, अभी तकरीर नहीं करनी, 3 पॉइंट हो गया। सुने ना यार भाई, आप देखिए मैं कंपेयर करता हूँ, एतराज करें ना जो बुनियादी है इस पर, मेरी गुफ्तगू पर आपने बस छोड़ दिया, आपका सवाल हो गया, 2 हैं पॉइंट आपके, हाँ इस पर चलें आगे। अच्छा, ये जो इब्न मसूद वाली हदीस है ये अबू दाऊद में है, और अगर आप अबू दाऊद के अगले पेज पे पढ़ेंगे तो अबू दाऊद ने खुद लिखा है कि ये हदीस इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, ठीक है, 3 हो गए। हाँ जी आगे। मैं और बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरी है जो घोड़ों के दुम वाली है, उसका मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, जिसमें अगर आप उसका अनुमान पढ़े ना टॉपिक का, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने बांधा है, ये बुखारी मुस्लिम में भी ये मौजूद है। अगर मैं आपको कई नंबर बता सकता हूँ, उन्वान ठीक है, उन्वान हो गया, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चौथी बात ये कि भाई उसका बाब है, बाब पढ़ना है, यही है कि इस्लाम के बाब, ठीक है। हाथ उठाने के 4 बातें हो गई, बस सवाल 4 हो गए, पॉइंट नोट हो गए आपके, मैं उनको चारों की तरफ आता हूँ। पहला पॉइंट हो गया, 4 5वां है, सवाल है तो बताएं। हाँ जी, नहीं अभी अब ये हो गए इस पर। अच्छा, हमजा भाई ने 257 पर यह एतराज़ किया कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा, और हसन जो होती है मर के पास होती है। मैं हसन की तारीफ पूछूँ तो क्या है, मुहद्दिसीन ने क्या किया, हसन किसको कहते हैं? हसन वो है सनद में 3 स्टेप है। आप हसन की तारीफ बयान करें, वो जो न करें कि स्टेप क्या है। हदीस हसन किसको कहते हैं? वो सही हदीस से दो लेवल नहीं है, ये तो तारीफ ही नहीं है, आपको तारीफ डेफिनेशन ही नहीं आती। मैं बताता हूँ। हमजा भाई ने पहला एतराज़ ये किया, भाई 257 क्या है, ये हदीस ज़ईफ़ है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल इमाम तिरमिज़ी ने पीछे नकल किया कि वो क्या कहते हैं, हदीस साबित नहीं है, ठीक है। अब नहीं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कहा, काल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, किधर चौथा नाम नहीं, बाकी इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कहा, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कहा कि वो कहते हैं कि हदीस इब्न मसूद साबित नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर इमाम तिरमिज़ी एक कलाम को नकल करके आ रहे हैं, पीछे एक हदीस पर तबसरा कर रहे हैं कि वो साबित नहीं, तो जो हदीस साबित ना हो उसकी सनद होती है, उसको हसन कहा जाता है।
उसको हसन है नहीं कहा जाता। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अगरचे वो नेक लोग साले थे, आज के झूठे लोगों की तरह नहीं थे, उन्होंने एक हदीस के बारे में एक मुहद्दिस का कौल ज़रूर नकल किया, लेकिन ये उनका अपना कमेंट नहीं है, अपना मौक़िफ़। इमाम तिरमिज़ी ने इस पर जो अपना कमेंट दिया है वो कहा है काला, अब ये सुने, वफ़िल बाबे अनिल बर्रा इब्न आज़िब, इस बाब में आप मेरी तरफ तवज्जो करें मेरे भाई, इस बाब में बरा बिन आज़िब की हदीस भी है। काला अबू ईसा हदीस इब्न मसूद हदीस हसन, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस हसन है। वह भी यकूल गैर वाहिद मिन अहल मिन असहाब नबी व ताबिईन व कौल सुफियान सौरी व अहल कूफा, यही कौल नमाज में रफ़ा यदैन न करना सहाबा किराम में से बहुत बड़ी तादाद अहले इल्म की उनका ये मौक़िफ़ है, और इसी तरह ताबीन में से भी बहुत बड़े ताबीन का अहले इल्म का ये मौक़िफ़ है कि वो क्या करें, रफ़ा यदैन नहीं करते। ये कमेंट्स हैं, यही सुफियान सौरी और अहले कूफा का भाई मौक़िफ़ है। इमाम तिरमिज़ी ने अपना जो कमेंट दिया है इस पर वो ये है कि वो कहते हैं कि हदीस हसन है और ये सहाबा का और ताबीन का अमल है। अब आए अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाले, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वाले कौल पर, तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से यही अब्दुल्लाह इब्न मुबारक नसाई शरीफ में इस हदीस को रिवायत भी कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली रिवायत को साबित कर रहे हैं। अब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछे कि एक हदीस के बारे में आप कह रहे हैं कि वो साबित नहीं है और उसको नकल भी कर रहे हैं, या इमाम तिरमिज़ी को समझाएं कि आप एक तरफ जो है वो एक कौल नकल करके आ रहे हैं कि साबित नहीं है और आप उसको साबित भी कर रहे हैं। तो जब एक रिवायत खुद करे बंदा, इमाम तिरमिज़ी उनके बारे में कह रहे हैं, खुद इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल नहीं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खुद उसको रिवायत कर रहे हैं, यही हदीस फसल्लल्लाहु अलैहि यरफा यदैहि लफ़ी अव्वल मररतिन नसाई शरीफ के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये मुहद्दिसीन की बातें हैं, अहले फ़न की बातें हैं, आपके लेवल की ये बातें नहीं है, आम आदमी का ये फ़न नहीं है। आपने कहा मैंने सियासत की सारी हदीसें नहीं पढ़ी, फ़न तहकीक तो ये थी कि आप सारी हदीसें पढ़ते, ज़िंदगी लगाते, जिस तरह के मुहद्दिसीन ने लगाई है, फिर जाके कोई फैसला करते। लेकिन आपने क्या किया, चंद रिवायतें पढ़ ली और उसके मुकाबले में नहीं किया। मैंने आपसे ये कहा था कि आपने हदीस कौली पेश करनी है, वो आपने नहीं की। तो इस पर पहला एतराज़ आपका जवाब दे दिया कि ये हदीस हसन है, इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि हसन है और उन्होंने सहाबा किराम का अमल बताया। दूसरा एतराज़ आपका ये था बरा बिन आज़िब वाला है कि वो हदीस क्या है, नुबानी ने कहा या दो नाम लिए ज़ुबैर रज़ी ने कहा कि हदीस क्या है, ज़ईफ़ है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि मुहद्दिसीन का हदीसें जमा करने का अपना अपना मनहज है। इमाम बुखारी की अपनी तरीका है, इमाम बुखारी ने हदीसें नकल की हैं, इमाम मुस्लिम उनके मनहज से मुत्तफ़िक नहीं, अगर ये शागिर्द भी हैं। अगर बुखारी काफ़ी होती किताब तो मुस्लिम को किताब लिखने की जरूरत तो नहीं पेश आती। आप तो वजह उस तरफ देखते हैं तो मैं आपको कैसे बात समझाऊंगा। मुहद्दिसीन का अपना अपना मनहज है, इमाम बुखारी का अपना है, मुस्लिम का अपना है, तिरमिज़ी का अपना है। इसलिए इमाम अबू दाऊद का मनहज है कि जो हदीस ज़ईफ़ हो उसको कह देते हैं, ये साबित नहीं है। इस पर जो आपने जिक्र किया इसकी सनद भी मौजूद है और इस पर किताब भी मौजूद है। असल किताब में जाएं और आप वहां दिखाएं कि इमाम अबू दाऊद ने इसको ज़ईफ़ कहा हो। अगर इमाम अबू दाऊद ज़ईफ़ कहें तो मैं भी ज़ईफ़ कहूंगा, मैं भी छोड़ दूंगा। इमाम अबू दाऊद कब पैदा हुए? 202 में और फौत हुए 275 में, 275 में। और ज़ुबैर रज़ी कब फौत हुआ, कब पैदा हुआ और कब फौत हुआ? 1970 में और फौत हुआ है 2017 में। इमाम अबू दाऊद जो है जी वो 1200 साल पहले तकरीबन हदीस के बारे में हुक्म लगा रहे हैं, हदीस सही है। अब हदीस के बारे में हदीस का हुक्म मुहद्दिसीन से पूछा जाएगा या कि आजकल के नौमौलूद मुहक्किकीन से पूछा जाएगा। अबू दाऊद का ये तरीका है कि वो जो हदीस ज़ईफ़ हो उसको कह देते हैं, जिस पर खामोश हो जाए वो क्या होती है। इसलिए जिस मुहद्दिस की हदीस है उससे फैसला कराना है। वरना मैं आपसे ये कहूं कि आप लोग तो ये कहते हैं कि बाबे हमारे लिए कोई शय नहीं है, हमारे लिए हुज्जत उसका कौल है जो जिसकी कब्र किसमें है, मदीने में। तो फिर तो आपको तो मुहद्दिसीन की तो बात ही नहीं पेश करनी चाहिए, ये भी तो इंसान है, मौलवी है, मुहद्दिस है, हम जैसे लोग थे। लिहाजा इनकी बात तो आपकी हुज्जत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद मैं आपको नीचे आके समझा रहा हूं कि जिस मुहद्दिस ने जो हदीस नकल की है उससे उसका हुक्म लगवाएं, ठीक है। तीसरा रिवायत क्या था आपका एतराज? ये थी कि घोड़ों की दुमी वाली पर आपका एतराज था, क्या था कि उस पर जो उन्वान है, हाँ जी ठीक है, उस पर जो उन्वान है वो क्या है। तो मैं कहता हूं कि मुहद्दिस का फाहम होता है, मुहद्दिस का फाहम होता है। इमाम नसाई का बाब आपके लिए हुज्जत है? इमाम नसाई का बाब जो बाब बांधे आप उसको हुज्जत मानते हैं? नहीं, हाँ या ना में कह रहे ना, लंबी नहीं है यार, हाँ या ना करो, मेरी बात भी जारी है। इमाम नसाई जो बाब बांधे, जो ऊपर उन्वान बांधे, वो आपके लिए हुज्जत है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दें। नहीं है तो फिर आप पेश क्यों कर रहे हैं? जो उन्वान बांधा है वो सलाम का बांधा है, बिल्कुल ठीक है। इमाम मुस्लिम ने जो उन्वान बांधा है, इमाम नबी ने मुस्लिम शरीफ में, वो क्या है? उसमें नमाज के अंदर सुकून का बाब है। तो इमाम मुस्लिम का बाब क्यों नहीं आपके लिए हुज्जत? इमाम नसाई ने जो बाब बांधा है वो 1186 से मुतल्लिक है। हर मुहद्दिस जब हदीस में बात बांधा है तो उन्होंने दो हदीसें नकल की हैं, एक नहीं की, और दोनों अलग अलग हैं, सनद भी अलग अलग है। लिहाजा इमाम नसाई का जो बाब है वो 1186 से मुतल्लिक है। बाकी सुकून जो होता है नमाज के अंदर, जो मने रफ़ा यदैन कहाँ पे होता है? नमाज के अंदर होता है। तो इमाम नबी ने जो मुस्लिम के बाब बांधे हैं उसमें मुस्लिम शरीफ के अंदर जब ये हदीस आती है उस पर बाब नमाज के अंदर सुकून का भी है, नमाज का भी जिक्र है। लिहाजा ये मुहद्दिसीन का फाहम होता है। आप अगर आपने हलफ दिया था कि आपके लिए नबी पाक का फरमान क्या है, हुज्जत है, दोनों तरफ हदीसें मौजूद थी, मैंने उनको हुज्जत नहीं बनाया जो फेली है, मैंने हुज्जत बनाया कौली को। किसको बनाया? नबी पाक फरमा रहे हैं नमाज में सुकून इख्तियार करो, रफ़ा यदैन न करो। आप कहते हैं मुहद्दिस कहता है कि सलाम से मुतल्लिक है। आपने मुहद्दिस का कलमा पढ़ा है या रसूलुल्लाह का पढ़ा है? आपके जिम्मा तो अब ये था कि आप नबी पाक की बात मानते। अभी आप या तो टाइम लें या मुझे यहाँ पे कौली हदीस पेश करें। तकरीर नहीं करनी, सवाल देख देखे ना, पहले आपने कहा था कि बहस नहीं करनी, आप इसलिए आए। तकरीर नहीं फरमानी, तकरीर करनी है तो यहाँ है, सवाल है। मेरे नजदीक मैंने आपको जो हदीसें पेश की हैं कि वो वाले साहब जो मतलब मक्का के आप मुसलमान हैं वो पेश कर रहे हैं रफ़ा यदैन की। दूसरा ये है कि क्या सारी जिंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ते रहे वो गलत है? बिल्कुल। आप चाचा जी को माइक दें, हो गया सवाल आपका। आपने कहा कि सहाबाए किराम के बारे में, तो सहाबाए किराम के बारे में तो मुख्तलिफ अक़वाल आपको मिलेंगे, कुका मुसलमान हुआ, कुका मुसलमान हुआ। मैंने आपको कहा कि मालिक बिन हुवैरिस 20 दिन रहे, कितने दिन रहे आपके बकौल?
20 दिन। और अब्दुल्ला बिन मसूद सारी जिंदगी सरकार के साथ रहे। एक बंदा हर वक्त साथ रहा, सारी जिंदगी रहा, और मुसलमान भी कब हुआ? 8वें नंबर पे, सारी जिंदगी रहा। वो कहता है हुजूर रफ़ायदैन नहीं करते थे। तो अब आप क्या करेंगे? मैंने इसलिए आपको बताया कि सहाबा के अक़वाल मुख्तलिफ आपको मिलेंगे। इस हवाले से हमारे लिए हुज्जत नबी पाक का फरमान है, फेल हदीसें दोनों तरफ मौजूद है। चाचा जी क्या नाम आपका? खुर्शीद साहब, देना इनको माइक दें, बात खत्म करते हैं। माइक दें खुर्शीद साहब, ये सैनी के रहने वाले हैं। हमजा, एक मिनट बाद में, एक मिनट हमजा भाई सुने ना, मेरे प्यारे भाई गुस्सा ना हो, देख सुने ना, मेरी तरफ देखो बेटे, ये मजमा है, अब ये इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इधर ही हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ कमरे में आ जाइएगा, वहां बैठ कर बात कर लेंगे। मजमा इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। अब आपने सुनना है, हमजा भाई ने अपनी रिवायतें बयान की, मैंने इनको जवाब दिया कि वो सारी फेल ही हैं, नबी पाक का फेल हैं। आप नबी पाक का कौल लेके आए, मैंने नबी पाक का कौल पेश किया, ठीक है। अब एक हफ्ता ले लें, एक महीना ले लें, इनसे जितना अभी भी मैं टाइम पाबंद नहीं करता, बाद में भी सोच लीजिएगा। आप टाइम ले लें, आपको नबी पाक का फरमान मिले। मैं कश्मीर में ये कह रहा हूँ, जेलम से आया हूँ, और जेलम वाली कुंडी वाली सरकार के गवाड़ में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपको मिले, पहले तो होना चाहिए कि अब आप उसको भी बुलाएं यहाँ पे, अगली बार उसको भी आना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आएगा, उसे तो सुई से डर लगता है, लेकिन हिलतरम को नहीं डर लगता। लिहाजा मैं यहाँ पे चैलेंज देके जा रहा हूँ, जो बंदा रफ़ायदैन करता है पूरे कश्मीर में फैला दे। वो एक हदीस लेके आए क़ाल रसूलुल्लाह से कि नबी पाक ने हुक्म दिया हो, फरमाया हो, मैं भी रफ़ायदैन करूंगा और आप भी करेंगे। ये होती मर्द वाली बात। अगर हदीस ना मिले फिर इन पर ये वाजिब है कि ये क्या करे, रफ़ायदैन छोड़ दे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि रफ़ायदैन छोड़ दो। व्यूअर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।